Namaste. I, Rasika Dikshit Hatolkar, welcome you all to Rasika Believe channel. Today, my subject is personality grooming and my topic is study. The single word study come along with many questions with it. Why to study, what to study, how to study, where to study, when to study, and all those questions I'm going to answer today in this video. So stay tuned, don't go anywhere, but before that, as I always say, don't forget to subscribe my channel, click on a bell icon and like all my videos. Do share and comment. Thank you so much. Let's continue. So I was talking about the word study. You know, study is not the thing that only the students do. Study is all that when you observe and you try to understand it. That is nothing but the study. You can see a housemaker, mother. She also studied. She studied the relatives, the people she's staying along with, their attitude, their behavior, when they get happy, when they are upset. So she takes care of every one of them, their likes and dislikes. So she is studying the behavior, the psychology of the people surrounded to her. A father is studying about the office atmosphere, about the various strategies. Especially in this lockdown period, you have observed a mother has learned a lot. She has learned the various recipes, correct? She has studied about it. A father has learned about the new technologies, work from home. So, a best thing to study is to concentrate, to observe, and to have that feeling that I will learn more about it. I want to know how we can do it more smoothly, more better. Correct? So, a teacher also study about the student behavior. The student which is weak, who is more strong, who can learn it in a one voice, who need to be made understand again and again. She study the thinking power of each child. A student study various subjects. There are many subjects nowadays in a syllabus, so he has to study all those subjects to secure the marks, correct? Now I would like to share some technical words, or I would say definitions, the meaning according to the dictionary of the word study. Okay, let's see. Study is the act of making an effort to learn by reading, practicing and memorizing. I would like to repeat, reading, practicing, memorizing. One more, which is from the Google language. Application of mind to the acquisition of knowledge as by reading, investigation or reflection. Now see how the things work, how smooth. All these you are doing it from such a long time. You are reading, you are practicing, you are memorizing. Correct? You are reading, you are investigating about those things, and then you are reflecting it in your gesture, in your behavior when you study about it. So all we do this practically. These are the technical words which we implement in a practical life, and that is nothing but the study. So we know the word study definitely in a very good way. Now let's see those questions which come in our mind when we have to sit back for our studies. So question first, why to study? A very interesting question. Okay, why to study? पढ़ाई क्यों करना है? हम पढ़ाई तभी करेंगे जब हमें उसका लक्ष्य पता हो कि हमें क्या हासिल करना है. When you have a motto, you will study. If you have a reason, then you have an interest
And if there is an interest, there is a beautiful efforts given to learn, to memorize, to study. Correct? So you need a motto, lakshya. Now you have to think that what should be the motto for me to study. It may be for the good relationship. It may be to score the good marks in the examination. It may be to get in the toppers in the competitions. It may be that if I have a knowledge, I would know a better life than this. I have a good humanity, a good gesture of behavior if I have a knowledge of all the things. So the reason, the motto may be any. Your motto, you decide. And so you will sit back calmly and just check out what is your motto. So now my first question, why to study? You got the answer. It's a reason, the motto, the lakshya to study. Okay, now let's go to the second question. The second question is what to study? क्या पढ़ना है? सबसे मेन क्वेश्चन होता है क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी. व्हाट टू स्टडी आप कब डिसाइड कर पाओगे? जब आपको पता होगा कि मुझे अगर ये लक्ष्य लाना है तो उससे रिलेटेड ही मैं पढ़ाई करूंगा. आपको अपने मोटो को लेकर, आपको अपने लक्ष्य को लेकर ही अपनी पढ़ाई करनी होगी. ऐसा तो नहीं हो सकता एग्जाम्पल कि आप 3rd स्टैंडर्ड में हो और आप 2nd स्टैंडर्ड की पढ़ाई करके कह रहे हो मैंने पूरी पढ़ाई कर ली तो मुझे कुछ अच्छे मार्क्स क्यों नहीं मिले. इफ योर मोटो इज टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि आपने पढ़ाई 2nd की थी, एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स 3rd की बुक के आए थे. करेक्ट. अगर आप कहोगे कि मैंने तो 4th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की थी, मैंने तो 1 साल आगे की पढ़ाई पूरी कर ली थी, मुझे तो सारे क्वेश्चन आंसर्स आते थे, फिर भी मुझे कुछ अच्छे स्कोर्स नहीं मिले. क्योंकि अगेन द आंसर इज द सेम. 3rd के आए थे पेपर में सारे क्वेश्चन आंसर्स, 4th के टेक्स्ट बुक के नहीं आए थे. तो अगर आप अपनी रिलेटेड पढ़ाई करोगे तो फिर अपने मोटो और अचीव कर पाओगे. तो व्हाट टू स्टडी का आंसर क्या होगा? यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू दी, रिलेटेड टू दी मोटो. जो भी आपका लक्ष्य है उसी से जुड़ी हुई आपको पढ़ाई करनी होगी. आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे और डॉक्टर की पढ़ाई करोगे तो कैसे होगा? सही कहा. तो आपको करना क्या है? आपको अपने मोटो से ही जुड़ी हुई पढ़ाई करनी है. What to study? The subjects which are related to your motto you have to study. Now, my third question, how to study? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. पढ़ाई कैसे करनी है? अब तो ये मुझे पता है कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, मुझे ये भी पता है कि मुझे पढ़ाई किस चीज़ की करनी है. अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे पढ़ाई कैसी करनी है. हाउ टू स्टडी. तो आपको पढ़ाई करने के लिए, कैसी पढ़ाई करने के लिए 3 चीज़ों को याद रखना. हाउ टू स्टडी, फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर द 3 थिंग्स, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. नाउ according to the subject, I will elaborate it in a better way in my next video. So subscribe it, click on the bell icon, so as I upload, you will get the updates. Oh, I will back on that. आपको 3 चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है हाउ टू स्टडी के लिए. पहला, you need to study according to the subject. जिस तरीके का सब्जेक्ट है उसी तरीके की अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको आसान जाएगी अपनी पढ़ाई याद रखना. नाउ मैं इस चीज़ को एलैबोरेट अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, लेकिन एक छोटी सी हिंट आपको देती हूँ. आपको लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. आपको मैथ्स होता है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है. आपको SST सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको थ्योरेटिकल की ज़रूरत होती है. तो तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग है. आपको तीनों को पढ़ाई करने के लिए उनका जो टेक्निक है जिससे वो चीज़ आपको, आप मैथ्स को बार बार पढ़ के नहीं याद कर सकते. आप इंग्लिश को बार बार सॉल्व करके नहीं याद कर सकते. आप हिस्ट्री को जो रूल्स है उसमें बिठा के नहीं याद कर सकते हैं. करेक्ट. क्योंकि उसके कोई रूल्स नहीं होते हैं. इट्स अ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है उसमें सारी, सच्चाई पे आधारित हिस्ट्री. सो इन चीज़ों को आपको कैसे पढ़ना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, लेकिन आपको
हाउ टू स्टडी में ये चीज़ याद रखना जरूरी है कि आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी। नाउ हाउ टू स्टडी में मैंने आपको कहा कि 3 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, दूसरा है आपको ब्रेक्स लेके पढ़ना है। You have to take a break. You cannot just keep on studying. Your brain will not cooperate you. A break is important for your brain. Now, how I will understand कि मुझे कितने देर तक मेरा ब्रेन साथ देगा पढ़ने के लिए, तो आपको उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप आज एक बुक लोगे, रीडिंग बुक, कोई भी स्टोरी बुक ले लो और पढ़ना शुरू कर दो। आप एक स्टॉप वॉच लगाओगे अपने सामने और बुक रीड करोगे। जहाँ पे आपको फील होता है स्टॉप वॉच बैंग एंड यू विल कम टू नो ओके, तो ये फिर 10 मिनट्स हो या 20 मिनट्स हो या 25 मिनट्स हो या 30 मिनट्स हो, आपको पता चल जाएगा कि मुझे इतने ब्रेक की ज़रूरत है, इतने तक मेरा ब्रेन मेरा पूरा साथ देता है। तो आपको उतना पढ़ना है, उतने देर 20 मिनट्स अगर आप समझ लीजिए आपका ब्रेन आपको साथ देता है, तो 20 मिनट्स यू विल स्टडी एंड देन you will take a break. You will take a round of a house, you will do some other work, wash your utensils and all, clean your area, read the newspaper, watch TV, dance for a second, and then go back again for that 20 minutes. But that 20 minutes and 20 minutes of with the 15 or 10 minutes break will help you to concentrate more on your studies to get a good outcome of whatever you are studying. That is really very, very important. This is a scientific reason you need to take a break. Your brain needs a break. The third most important thing, मैंने जो आपसे आपको कहा how to study के 3 पॉइंट है। तो पहला है according to the subject, दूसरा है with the breaks, और third most important thing है with music. With music तो आप कहोगे तो म्यूजिक तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, अगर बाजू में म्यूजिक चल रहा है तो मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी? No. Music will help you a lot to concentrate. Now, how I will explain you. There are many things in your mind you are distracted before only. कि ये पढ़ाई मुझसे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, इसमें कितने सारे हैं, आज मम्मी ने ऐसे क्यों बोला, आज उस फ्रेंड ने ऐसे क्यों कहा, आज फ़ोन क्यों नहीं आया अभी तक किसी का, दरवाजे पे कौन है, टीवी पे क्या चल रहा है, लॉकडाउन कब खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म हुआ या नहीं होगा, कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्या होगा, लस बनेगी या नहीं बनेगी। ओह माय गॉड, योर ब्रेन इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. You have many things behind in your conscious mind going on unconsciously. Wow, what a dialogue. So your brain is keep talking about other things when you are trying to concentrate on something. You do that. Just check out. अभी भी आपके दिमाग में दूसरी चीजें आना शुरू हुई होगी जैसे मैंने ये कहा होता है, आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको कॉन्शियसली डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है और आप अपनी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो फिर ऐसे वक्त पे जब हम एक म्यूज़िक पीछे लगा देते हैं, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, म्यूज़िक में वर्ड्स नहीं होने चाहिए और वो इंस्ट्रूमेंटल नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे म्यूज़िक कैसा होना चाहिए? तो एक म्यूज़िक होता है जिसे कहते हैं ज़ीरो बीट म्यूज़िक। ज़ीरो की कोई वैल्यू है? आपसे अच्छा कौन जानता है? ज़ीरो के बिना मैथ्स पॉसिबल है नहीं? तो बस वैसे ही ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, बट ज़ीरो के बिना मैथ्स पॉसिबल नहीं है। वैसे ही ज़ीरो बीट का एक म्यूज़िक होता है जो बुद्धिस्ट लोगों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो अपने मेडिटेशन में यूज़ कर सके उस म्यूज़िक को। तो ज़ीरो बीट का म्यूज़िक आपको कहीं पे भी गूगल सर्च में मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप उस म्यूज़िक को डाउनलोड कर लीजिए और आप जब भी पढ़ाई करने बैठेंगे उस म्यूज़िक को पीछे चलने दीजिए। आप अभी भी अगर शांत रहे in my video it is in the background. Can you listen it? है ना? Isn't it beautiful? So ये म्यूजिक को आपको पीछे रखना है तो क्या हो जाएगा, आपका अनकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली उस म्यूजिक पे चला के जाके रुक जाएगा। अब आप बताइए, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से एक डिस्ट्रैक्शन कभी भी बेहतर है ना? तो उस डिस्ट्रैक्शन पे जब वो कॉन्सेंट्रेट कर लेगा तो आपको आसानी से अपनी आवाज़ सुनाई देगी। फिर आप अगर पढ़ाई करते समय जोर से भी नहीं बोलोगे, धीरे धीरे आवाज़ में भी पढ़ोगे, मन ही मन में भी रीडिंग करोगे, तब भी आपको अपनी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी, क्योंकि आपका जो
अनकॉन्शियस माइंड है वो उस म्यूजिक पे रुका हुआ है, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको कंप्लीटली सपोर्ट करेगा अपनी पढ़ाई करने में, है ना। सो हाउ टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, whatever the techniques are, I'm going to tell you, I'm going to share you in my next video. Stay tuned for it. Second thing, with the breaks, एक साथ लगातार पढ़ाई कभी नहीं करनी है, ब्रेक्स ले लेके आपको पढ़ाई करनी है। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? म्यूजिक। आपको कॉन्सेंट्रेशन के लिए म्यूजिक की बहुत जरूरी है। एक चीज़ मैं आपको जरूर बताऊंगी, अगर आप सोच रहे हो कि अगर मेरा ब्रेक 20 या 25 मिनट्स का है तो सिर्फ इतनी देर पढ़ना है, एक बार इंटरेस्ट आ जाए, एक बार कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ जाए तो अपने आप वो 20-25 मिनट से है ना, आपका टाइम 30-45 कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब दिलचस्पी बढ़ जाती है ना तो अपने आप टाइम बढ़ जाता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट, व्हेन टू स्टडी, पढ़ाई कब करना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में कि नाइट में? व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर मी टू स्टडी? दैट इज यू आर गोइंग टू डिसाइड, नॉट you have to sit at least for a week on all the 3 times. आप 2-3 दिन सुबह बैठ के देखो, आप 2-3 दिन शाम को बैठ के देखो, 2-3 दिन आप रात को बैठ के देखो। आपको कब फ्रेश लगता है? जब आप पढ़ रहे हो तो आपका ब्रेन आपको कंप्लीटली साथ दे रहा है पढ़ने के लिए, आपको फ्रेश फील हो रहा है, आपको पढ़ते से ही याद रह रहा है, आपको खुद ध्यान में आएगा, आपका बॉडी, आपका ब्रेन आपको बताता है कि मुझे सुबह का वक्त अच्छा लगता है, वो आपसे ये कहता है, यू विल लिसन इट, जस्ट टॉक टू योर ब्रेन। आई कीप ऑन टेलिंग ऑल माई स्टूडेंट्स टॉक टू योर ब्रेन रिप्लाइज यू। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सबसे अच्छा समय कौन सा है, और उस समय को आप ज़रूर याद रखिएगा और उस समय पे ही पढ़ने को बैठिएगा, आपको वाकई में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। Now my last question is where to study? मैं कहाँ पढ़ाई करूँ? सोफे पे, पलंग पे, बालकनी में, एक बंद कमरे में जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है? ये भी आप डिसाइड करोगे। मुझे पता है कहाँ पढ़ना पसंद है। मैं कई बार हॉल में बैठ जाती हूँ, मैं अपने नोट्स निकालते रहती हूँ, और मेरे मम्मी पापा, माय हस्बैंड, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे और मेरी सास, हम सब एक साथ हैं अभी लॉकडाउन में, और वो सब लोग टीवी देखते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, किसी का फ़ोन चलते रहता है, और इन आवाज़ों के बीच में मैं बैठी रहती हूँ और मैं अपने अपने नोट्स निकालती रहती हूँ, और मैं बीच बीच में बातें भी करती हूँ। सो आई एंजॉय विद देम while studying. So my comfort zone is around the people. Now you decide which is your comfort zone. ऐसा नहीं होता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा नहीं बैठना चाहिए वैसे बैठना चाहिए, यहाँ नहीं बैठना चाहिए वहाँ बैठना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई पुराणों में लिखा नहीं है कि कहाँ जाके बैठना चाहिए। जहाँ आपका मन लगता है वहाँ आपको पढ़ाई के लिए बैठना चाहिए। So where to study? Where you feel most comfortable. लेकिन एक बात जरूर कहूँगी, आप कहीं पे भी बैठे पढ़ाई के लिए, नीचे हमेशा फ्लैट सरफेस का इस्तेमाल कीजिए। तख्ते का, मे बी आप टेबल पे बैठ लीजिए, या अगर आप पलंग पे या सोफे पे बैठते हैं तो फिर पाटे का इस्तेमाल कीजिए, अगर आप नीचे ज़मीन पे बैठते हैं तो चौरंग का इस्तेमाल कीजिए। वी हैव अ गुड ऑप्शन यू नो इन इंडिया, सो यू कैन यूज ऑल दोज थिंग्स, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट wherever you sit, you take a flat surface for studying. क्यों? क्योंकि आपकी अगर बुक है वो फ्लैट सरफेस पे होगी तो आपको कंफर्टेबल होगा, आपको लिखना आसान होगा, आपको पढ़ना आसान होगा। आपके मांडी पे वो विंग्स की तरह उड़ते रहेंगी बुक्स, अनकंफर्टेबल हो जाओगे तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे ना, इसलिए। So now you got all the 5 question answers correct. Why to study? मोटो के लिए, what to study, मोटो से related, how to study according to the subject with breaks and music to concentrate. Where to study, where you feel more comfortable, when to study, the time you feel is the most suitable for your body and your brain. So you got all the 5 questions now. Okay, now what you have to do, you have to start with your studies. And one more thing, I will give you 3 tips. Keep it. I loved it. You will also. Tip number 1,
take a bottle of water or a cup of a coffee or a green tea or any soft drink on your desk so that you can take it sip and sip as you are studying. क्यों? क्योंकि जब हम इतने देर तक अगर मन के अंदर भी रीड कर रहे हैं ना तो हमें थर्स्टी सा फील होता है। तो वो जो सिप्स होते हैं ना जब हम लेते हैं पानी की, तो वो हमें एक अलग ही मोटिवेशन देती है, एक अलग ही स्ट्रेंथ देती है क्या कि हम और थोड़ा देर पढ़ लें। यस, इट वर्क्स, जस्ट ट्राई। सेकेंड टिप, टिप नंबर 2, सिट इन अ कंफर्टेबल लूज क्लोथ्स। कभी भी ऐसे लूज हल्के फुल्के कपड़े पहनना चाहिए पढ़ाई करते समय जिसमें आपको बहुत कंफर्टेबल फील हो, आपका बॉडी आपके ब्रेन को कंप्लीटली सपोर्ट करें। अगर आप फॉर्मल क्लोथ्स में या टाइट क्लोथ्स में बैठोगे ना, आप पढ़ाई से ज़्यादा ना अपनी बॉडी पे ध्यान देंगे, है ना। सो टिप नंबर 3, विद ऑल यू नीड्स, जो भी तुम्हारी ज़रूरत है उसे अपने हाथ की दूरी पे रखो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, स्केल नहीं है, रबर नहीं है, शार्पनर नहीं है, पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, टेक्स्ट बुक अलग है, नोटबुक अलग है, रफ बुक नहीं है, ये चाहिए था, वो चाहिए था, कैसे चाहिए था, क्यों चाहिए था, ये तो हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम डिस्टर्ब बहुत हो जाते हैं वो चीज़ लाने के लिए। तो बेटर है कि जब हमें पता है कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, फिर चाहे वो कैलकुलेटर क्यों ना हो, उसे लेकर ही बैठिएगा अपने पास। कोई भी कारण नहीं चाहिए बिना वजह पढ़ाई से उठने के लिए। Do you get it? This is a teacher scolding you all. So sit down with the tips, with the 5 answers in your hand and start with your studies. Stay tuned with me and keep watching my channel. इस तरीके की वीडियोस है ना बार बार देखते रहना, ताकि वो जो एक धुंधला सा हो जाता है ना, कई बार जो चीज़ें हम करते हैं लेकिन थोड़ी सी भूलने लगते हैं, वो हम पॉलिश हो जाते हैं और फिर से मोटिवेट हो जाते हैं। These types of videos are like motivation for us, the students who study. So keep watching me. I will take a sign off for the day and see you soon with my next video. Bye bye.